Assalamu alaikum. My name is Kiran Amir and I am the Director Operations at PARSA ECHO Pakistan Super Hub. I would like to welcome you all to another ECHO session in series of Hepatitis ECHO. It's in collaboration with Pakistan Society of Hepatology. Today's session is case-based discussions with an expert, and our expert for tonight is Dr. Najam-us-sehar Saeed. Before I introduce you to our expert for tonight's session, we have to go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project ECHO based in USA with an objective to disseminate knowledge and best practices. PARSA ECHO Pakistan started as hub in 2017 and got the status of first ever super hub in Pakistan in 2021. Following the guidelines of Project ECHO with an objective that community providers learn through video technology to participate in guided practice with specialist mentors. They acquire new skills that allow them to treat patients otherwise referred out. Patients with chronic condition get high quality care without travel and waiting. We do protect patient privacy, so none of the information used in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you all are muted, but we do encourage participation, so you can unmute yourself for question and use the raised hand option or chat box. By participating, you have given the consent for recording. The recorded session will be available on our YouTube channel. Link will be shared in the chat box. For CME credits, please contact Uzair, our coordinator. His number is mentioned on the banner. CME credits are affiliated with Jinnah Sindh Medical University. Uzair will share the Google form at the end of the session, which will be active for 12 hours. You are requested to fill it as soon as possible to avail the opportunity of CMEs. For the convenience of folks, the session is bilingual. Please speak in Urdu and English, whatever language you are comfortable in. If you are interested in our publication, please fill the form shared by Uzair at the end of the session. Our expert for tonight's session, Dr. Najam-us-sehar Saeed, is Assistant Professor Gastroenterology, DHQ, Hospital Gujranwala. Previously, she also worked in Sheikh Zayed Hospital and Gangaram Hospital, Lahore. She is regional representative of Pakistan Society of Hepatology. We have two cases today. Dr. Amna from PARSA Trust will present the first case and Dr. Mishal will be presenting the second case. Now I will hand over to Dr. Amna for the first case. Over to you, Dr. Amna. Assalamu alaikum. Can you hear me? Yes, I can. Okay. Case 1. A 26 years old female, unmarried, got diagnosed with hepatitis B in 2020. PCR was detected. Back then, she took tenofovir for 1 year till 2021. PCR was repeated in 2021 and was not detected. She discontinued tenofovir. Now she is presented with HBs antigen negative on screening in May 2023. There is no other comorbidity. Her further workup was done, which shows her anti-HBs and anti-HBC positive. Investigations are HP was 9.6 in 2021 and followed by 11.5 in September 2021. In May 2023, her HP is 12.1. TLC was 8.4, followed by 9.7, 10.6. Platelets were 287, followed by 316 and 289 in recent labs. ESR was 23, creatinine 0.6. LFTs are bilirubin was 0.6 in 2021 and now 0.7 May 2023. ALT was 131 in 2021 and now 52. AST was 90 followed by 36 in recent labs. Alkaline phosphatase was 229 followed by 205. Albumin was 4.4. Now recent labs shows 4.2. Random sugar 773. Her anti-HCV screening shows negative. HBS is negative in May 2023 on screening. Anti-HPC is positive, dated 3rd of June 2023, and anti-HPS is also positive. Ultrasound abdomen shows fatty liver. Questions are how to manage this patient now, what further workup do we have to offer her?
Thank you. Before we go to Dr. Seher, let me just summarize this case. ये बहुत अनकॉमन सिनारियो नहीं है। एक यंग फीमेल 26 साल की with diagnosis of hepatitis B in 2020 with positive PCR at that time. उसकी कोई वैल्यूज हमारे पास नहीं है, कोई क्वांटिटेटिव लोड नहीं है, और ये हमारे क्लिनिक में आती हैं और टेनोफोविर 1 साल के लिए उन्होंने ली है। पीसीआर 2021 में जो आया, जो गालबन में बी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और एट सम स्टेज एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट वो वाज नेगेटिव एंड पेशेंट डिसकंटिन्यूड टेनोफोविर। अब हमारे पास सरफेस एंटीजन नेगेटिव के साथ आई हैं जो फर्दर टेस्ट किए गए। एलएफटीज आप देख सकते हैं, एक थोड़े से ज्यादा हैं एएलटी, और हेपेटाइटिस बी डीएनए इज नेगेटिव, सरफेस एंटीजन इज नेगेटिव नाउ विद पॉजिटिव एंटी एचबीएस और कोर एंटीबॉडी पॉजिटिव। तो इस सिनारियो में हमारे पास डिरेंज्ड एलएफटीज हैं थोड़े से। अल्फा एएलटी अभी भी 52 है, तकरीबन 8-10 दिन पहले, और लिवर में देयर इज हेपेटिक स्टीएटोसिस। डॉक्टर आमना, आई डोंट नो, आपने इनका कोई वेट मेंशन नहीं किया। कोई अगर अगर आपके पास कोई याद हो आपको तो उसका कोई वेट और बीएमआई अगर होता तो बेहतर होता। बहरहाल डॉक्टर सहर, आई जस्ट रिवाइज द होल थिंग, तो अब आपके पास है कि आप इसको किस तरह लेके चलेंगे। जी जी डॉक्टर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा इसको समराइज किया। लेकिन मैं एक बात बस कहना चाह रही थी कि ये अनकॉमन तो नहीं है इस तरह पेशेंट फाइंड करना, लेकिन इस तरह पेशेंट का सरफेस एंटीजन नेगेटिव हो जाए ये एक अनकॉमन बात है। व्हाट वी यूज टू सी इज के एंटीवायरल ट्रीटमेंट ओवर द इयर्स लेते रहते हैं पेशेंट्स, उनका बी डीएनए तो नेगेटिव हो जाता है, लेकिन सरफेस एंटीजन, दिस पेशेंट इज मस्ट बी वेरी लकी कि जिसका सरफेस एंटीजन नेगेटिव हो गई, यानी वो सीरो कन्वर्ट हो गई। हेपेटाइटिस बी जो है वो उसका सरफेस एंटीजन नेगेटिव हो गया। बड़ा कम परसेंटेज है, आप तो 3% जो पेशेंट्स जो है वो लूज कर लेते हैं अपनी सरफेस एंटीजन। पहला तो ये कमेंट एक ना, और दूसरा इस पेशेंट की एक्चुअली अगर हम कैटेगराइज करें तो दो मसाइल हैं। एक है हेपेटाइटिस बी जो कि ऑब्वियस है, आप मतलब आपने वो सारा सिनेरियोस पे बेस्ड है, और दूसरा जो है वो दैट इज नेफल्ड या फैटी लिवर या मैफल्ड जिसको हम कहते हैं कि फैटी लिवर डिजीज। तो इन दोनों को हमें केटर करने की जरूरत है। हेपेटाइटिस बी के लिए ऐसा है कि पेशेंट इज वेरी लकी कि टेनोफोविर लेने के बाद उसका सरफेस एंटीजन नेगेटिव हो गया। अब जो स्टेटस है उसमें एंटी एचबीसी पॉजिटिव है और एंटी एचबीएस पॉजिटिव है। एचबीसी का वैसे मेंशन नहीं किया, लेकिन आई सपोज कि आईजीजी ही होगी ये। तो अगर एंटी एचबीसी आईजीजी पॉजिटिव है विद एंटी एचबीएस, सो दैट मीन्स दिस इज रिजॉल्व्ड इन्फेक्शन, यानी हेपेटाइटिस बी occurred in the body and now it has resolved। ठीक है, बी डीएनए करंट जो डेट है उसमें मेंशन नहीं है वैसे। आपने कहा कि वो नेगेटिव है, तो आई टेक इट एज कि ये नेगेटिव होगा हेपेटाइटिस बी का डीएनए भी, क्योंकि सरफेस एंटीजन नेगेटिव है। तो इस सिनेरियो में हमें हेपेटाइटिस बी के लिए तो फिलहाल कोई ट्रीटमेंट इस पेशेंट को देने की जरूरत नहीं है, अनलेस दिस पेशेंट वांट्स टू हैव सम कीमोथेरेपी, और या कोई हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसमें अपने पेशेंट को कोई मतलब इम्यूनोसप्रेशन देनी है, तो तब उस केस में ये कैंडिडेट होगी फॉर एंटीवायरल थेरेपी। अदरवाइज इस पेशेंट को मजीद अभी ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, जस्ट वी विल कंटिन्यू टू मॉनिटर हर एंड सी हाउ थिंग्स गो। ठीक है, इस पे आगे चलती जाऊं या मतलब यू वांट टू कमेंट समथिंग? जी, थैंक यू सर। आई थिंक आपने बड़ा एडिक्वेटली इसको एक्सप्लेन किया। आई टोटली एग्री विद यू। और जो आपका ये जो पॉइंट है टू ऑल द डॉक्टर्स हेयर के अगर कभी भी, क्योंकि ये जो एंटी एचपीसी पॉजिटिव है विच सिग्निफाइज प्रीवियस इन्फेक्शन जो कि हमारे पास हिस्ट्री है, और एस एंटीजन हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन सीरो कन्वर्जन हो चुकी हुई है,
तो कभी भी अगर कीमोथेरापी या रिटुक्सीमैब वगैरह पे अगर ये पेशेंट जाए किसी वजह से, तो वहां पे ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि क्योंकि ये रिवर्स कन्वर्जन ना हो जाए वायरस की, और जिसको आपको देखना पड़ता है। बट फॉर ऑल जी प्रैक्टिकल पर्पसेस आई थिंक इन अ यंग फीमेल ये बहुत अच्छा होता हमारे पास अगर 2020 के रिकॉर्ड होते, क्योंकि ये भी मुमकिन है कि उसको उस वक्त एक्यूट हेपेटाइटिस बी जी हुआ जी हो। जी जी अगर 4 बिल्कुल आई आईजीएम वाज और वो अल्लाह की तरफ से ठीक हो रही हो, तो टीडीएफ ने तो सिर्फ एक जी धक्का जी मारा उसको, जी यू नो। दैट इज आई थिंक मोर लाइकली सिनेरियो के मोस्ट लाइकली ये एक्यूट हेपेटाइटिस बी था समवन ट्रीटेड इट वो बस यानी ट्रीटमेंट का शायद इतना वो ना हो और क्योंकि आपको पता है कि 95% ऑफ द टाइम एक्यूट हेपेटाइटिस बी विल रिजॉल्व और वो प्रॉब्ली दैट इज द केस जी जी, ये दिस इज मोर जी लाइकली, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड होता जी जी नहीं है, पेशेंट्स जस्ट ड्रॉप इन। तो आई टोटली एग्री विद यू। और नेक्स्ट आप क्या कहना चाह रही थी, काइंडली आप प्रोसीड करना। मैं ये कहना चाह रही थी कि दूसरा जो इस पेशेंट का इशू है वो जैसे अल्ट्रासाउंड पे आपको फैटी लिवर डिजीज का जो है वो एविडेंस मिल रहा है थोड़ा सा एएलटी भी पेशेंट का ज्यादा है वी कैन नॉट एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ हेपेटाइटिस बी वी नीड अनदर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस अगर रियल लाइफ सिनेरियो में ये पेशेंट है और उसका मतलब मे बी आई वुड लाइक टू फर्दर प्रूव द हिस्ट्री एक तो ओबेसिटी के लिए देखना पड़ेगा वेट बीएमआई अब जैसे करंटली तो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फैटी लिवर डिजीज के वो दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स अ मोर एग्रेसिव अप्रोच और अब ये है कि आपने पेशेंट को जस्ट इग्नोर नहीं करना आपने उसका बीएमआई चेक करना है उसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए देखना है जिसमें डायबिटीज ऑल्दो के ब्लड शुगर इसमें मेंशन्ड है लेकिन इवन देन आप HbA1c पेशेंट का करवाएं उसको उसका लिपिड प्रोफाइल करवाएं उसको सारा यानी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम के लिए वर्कअप करें और इस पेशेंट का फाइब्रो स्कैन करवा के मतलब एक्टिवली देखें कि कितना फाइब्रोसिस उसके अंदर मतलब फैट ने कितना डैमेज कर दिया है और यानी अब शिफ्ट हो रही है पहले जैसे फैटी लिवर डिजीज में एग्रेसिव अप्रोच नहीं थी हमारी अब दे से कि वी शुड बी मोर एग्रेसिव टुवर्ड्स दिस पेशेंट और एक्टिवली उसका ऑब्वियसली अब यू नो स्टिल वी डोंट हैव एनी मेडिकेशन टू ट्रीट दैट अगर हम इसमें फाइब्रो स्कैन में कोई हमारा कोई F2 3 2 से ज्यादा आ जाता है तो हमें इस पेशेंट का अगर वेट ज्यादा है बीएमआई ज्यादा है तो उसको एक्टिवली वेट लॉस की तरफ लेके जाना चाहिए उसके लिए न्यूट्रिशनल एडवाइस लाइफस्टाइल चेंजेस इवन जो वेट लॉस मेडिकेशन और वो सारा डिपेंड करता है कि बीएमआई पेशेंट का कितना है और चीजें किस तरफ से जा रही हैं तो ये दूसरा इस पेशेंट का इशू है जिसको इस वक्त हेपेटाइटिस बी से प्रॉब्ली ज्यादा जिसे कहते हैं ना इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए और इसके अलावा पेशेंट का जो है वो WBC थोड़े से हायर साइड पे हैं मे बी वी शुड आस्क हर इन द हिस्ट्री अबाउट सम रीसेंट इन्फेक्शन जिससे भी ये थोड़ा सा ALT आपका जो है वो राइज हो सकता है आई वुड लाइक टू रिपीट इट अगेन आफ्टर सम टाइम और देन गो फ्रॉम देयर की चीजें जो है वो कैसे चलती हैं जी डॉक्टर सर थैंक यू, थैंक यू। हमारे पास नवीद असलम भी हैं, मुझे नजर आए थे, और फैजान। आप लोग कुछ ऐड करना चाहोगे? नवीद, आप इफ यू आर ऑनलाइन, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? फैजान, आप भी, इफ यू कैन हेयर मी। इसका वेट डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम आमना ने सर। जी जी नवीद, प्लीज गो अहेड। सर मैं आपको सुन रहा हूँ बिल्कुल। ये डॉक्टर नजमुस सर ने बड़ी अच्छी डिस्कशन की है, ठीक है। और आपकी आवाज आवाज थोड़ी, कट रही है आपकी हाँ मेरे ख्याल में कोई सर कनेक्शन मैं का ये शायद। कहना चाह रहा था कि डॉक्टर नजमुस सर ने सर मेरी आवाज आ रही है? जी, आप जी बेहतर जी हुई आप है। आ रही जी सर असल में मैं ये कहना चाह रहा था कि डॉक्टर नजमुस सर ने बड़ी अच्छी डिस्कशन की है। इसमें हमें इस पेशेंट का मेटाबॉलिक प्रोफाइल के हवाले से हमें फाइब्रो स्कैन और लिपिड प्रोफाइल और HbA1c यानी हमें देखना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहूंगा। ठीक है। इनका वेट चैट में इसने आमना ने मेंशन किया, इट्स अराउंड 82 kg। तो अच्छा तो ये है।
तो मेरे ख्याल में एज यू सेड डाइट एंड न्यूट्रिशन, लेकिन हमने डॉक्टर सहर ये भी देखा है कि और ये एक दो पहले हमारी जो एक एको फैटी लिवर पे हुई थी, उसमें डॉक्टर फारूक वाज वेरी क्लियर कि हमारी एडवाइस अब इतनी वर्क नहीं करती। तो मुझे नहीं पता आप लोग क्या एडवाइस करते हैं अगर इस सिनारियो में वेट कम ना हो और डिस्पाइट बेस्ट ऑफ द एफर्ट्स और एएलटी भी फ्लक्चुएट करता रहे, तो आप और अगर हम ये सर्टेन है लेट से बायोप्सी भी की और ये फैटी लिवर ही है, तो फिर आप किस तरह से इन लोगों को मुझे नहीं पता गुजरांवाला में कैसे काउंसल करती हैं? हाँ, that is very difficult. वो मैं the other day I was having a lecture, तो मैं यही कह रही थी कि जो सबसे पहला ट्रीटमेंट है हमारी डिजीजेस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स, दैट इज लाइफस्टाइल चेंज। लेकिन लाइफस्टाइल चेंज इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू, जो जितना इसको कहने में आसानी है। और स्पेशली आप यूर राइट, इन गुजरांवाला किसी को ये समझाना कि आप थोड़ा सा, और 82 kg पे तो उसने कहना है कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो अभी पाए शाय भी खा सकती हूँ, कोई मसला नहीं है। तो लेकिन ये है कि स्टिल इट इज मतलब बीएमआई अगर आप चेक करेंगे तो दैट विल बी मोर। तो उसको इंसिस्ट करते हैं डॉक्टर असद। और अब मैंने वैसे इवन मतलब टुवर्ड्स मेडिकेशन और जिसे कहते हैं मतलब ये जो ज्यादा ओबीस लोग हैं उनको सर्जरी की तरफ भी मतलब पुश करना शुरू कर दिया, क्योंकि आई वाज वर्किंग इन सऊदी अरेबिया बिफोर। तो इट वाज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, इवन लोग 80 से क्रॉस करते थे तो वो गेस्ट्रेक्टमी करा लेते थे जाके। तो इस तरह की यानी कि नाउ वी आर टॉकिंग मोर अबाउट इंटरवेंशंस, क्योंकि लोग हेल्पलेस कहते हैं जी हम हेल्पलेस हैं। मैं वैसे एक दफा जरूर डाइटिशियन के पास रिकमेंड करती हूँ, भिजवा देती हूँ, उनसे कहती हूँ कि एक दफा जरूर कोशिश करें। लेकिन मोस्ट ऑफ देम इवन इफ दे फॉलो अ डाइटिशियन, कुछ अरसे के बाद वो दे कम बैक अगेन विद द वेट गेन। तो वो फिर प्रॉब्लम यानी कि वहीं का वहीं रहता है। तो ये इट इज अ डिफिकल्ट थिंग टू डू। लेकिन जब उनको ये बताएं कि सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाएगा और एससीसी हो जाएगा, तो मे बी दे माइट लिसन। और सक्सेंडा नहीं लिखना शुरू किया अभी आपने? नहीं, ओज़ेम्पिक अवेलेबल नहीं है, और सेक्सेंडा का प्रॉब्लम ये है कि डेली इंजेक्शन लगाना लोगों के लिए बहुत हेडेक है। मैंने बात जरूर की, आई ट्राई टू काउंसल पीपल, क्योंकि कॉस्ट वाइज तो दोनों में कोई बहुत फर्क नहीं है, लेकिन ओज़ेम्पिक का जो एडवांटेज था डेट वाज वीकली डोज, तो वो थोड़ा सा ज्यादा था। और अनफॉर्चुनेटली ओज़ेम्पिक इज नाउ द ओनली मेडिसिन इन पाकिस्तान जिसमें कंपनी आके कहती है कि सर ये ना लिखें। सो वर्ल्ड ओवर शॉर्टेज है इसकी। सक्सेंडा जो है वो काफी लोगों को अब तो मैं शुरू करवा चुकी हूँ। चीमा में हमारे काफी कुलीग्स वगैरह और आगे मतलब काफी यानी लोगों को, कुछ पेशेंट्स को भी इस तरह से। मेरी फैमिली में वी हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओबेसिटी और इस तरह से। तो वन ऑफ माय सिस्टर शी लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट विद इट। वो यानी इट इट वर्क्स, अगर थोड़ा सा आप जैसे कहते हैं ना वो हाँ, नहीं, आप कर सही लें कह तो रही जी जी, हैं। इट इट वर्क्स। तो ये भी दिस इज अ गुड ऑप्शन, क्योंकि अब मैं तो यानी कि आई कैन से विद माय ओन एक्सपीरियंस, लिमिटेड है लेकिन ये है कि है एक्सपीरियंस है इसमें। और ये थोड़ी सी इनिशियल टॉलरेंस है की बात है। अगर वो टॉलरेट कर ले पेशेंट, थोड़े बहुत जो इनिशियल गेस्ट्राइटिस और उसके सिम्टम्स होते हैं वो काफी ट्रबलसम होते हैं। इट इज अगर फीमेल्स हैं यहाँ पे और वो कभी प्रेग्नेंट रही हैं तो दे कैन अंडरस्टैंड कि इट इज जस्ट लाइक एज इफ यू आर प्रेग्नेंट ऑल द टाइम। तो ये होता है, लेकिन अदरवाइज इट वर्क्स। सो जी। आई एम रिकमेंडिंग इट। Okay, any questions in this regard? Saxenda is liraglutide or Ozempic is जी जी semaglutide. जी, This इट is, इज so जी। any questions in this regard? कोई अगर that before we move on to the next case? Okay. Okay, can we move on to the next case? Question हम इसके बाद भी ले लेंगे. We can just finish off. जी. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। Uh, जी. Second case, it's about 53 years old female.
who presented with non-specific symptoms of myalgia, fatigue, generalized weakness. There is no associated comorbidities. She took antiviral therapy for HCV twice, first time in 2019 with Softex for 3 months, and second time in 2021 with Softex Riba for 6 months. But unfortunately, it didn't work for her both times. She was non-responder, and now she's again here for treatment as her HCV PCR is still positive. And right now we have only her latest workup available, which is 24th May. Her HB is 10.4, PLC is 8.8, platelets 456, PTINR is normal, HCV PCR is positive. And on 29th May, creat is 0.7, bilirubin 0.5, ALT 25, AST is 30. Alkaline phosphatase 190, GGT 72, albumin 3.7, blood sugar random 85. Her ultrasound shows liver slightly enlarged with irregular margins. Now, how to manage this patient and what antivirals we can offer her next? थैंक यू मिशाल। तो डॉक्टर सैद अगेन ये हम अक्सर देखते हैं 53 ईयर्स ओल्ड फीमेल हैं, जनरलाइज सिम्टम्स हैं। 2019 में और 2021 में पहले सॉफ्टेक 3 मंथ्स पे सॉफ्टेक राइबा 3 मंथ्स दी गई और शी डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट। और अभी भी जो लेटेस्ट लैब्स आपके सामने हैं, we have a high viral load और LFTs are normal, एप्री स्कोर इसका अच्छा होगा, प्लेटलेट्स इसके बहुत अच्छे हैं। अल्ट्रासाउंड पे मेंशन है कि इरेगुलर मार्जिन ऑफ द लिवर, बट अदरवाइज कोई स्प्लेनोमेगाली या कोई चीज और इस पे गालबन रिपोर्टेड नहीं है। तो अब आप बताएं कि इसकी चॉइसेस क्या होंगी, आप क्या करेंगी, और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। जी डॉक्टर सर, जी ये काफी कॉमन है, इतना अनकॉमन सिनेरियो नहीं है इसमें, बल्कि सम ऑफ द पेशेंट्स दे कम के पहले इंटरफेरॉन्स भी लगवाए थे, उसके बाद सॉफ्ट डैक ली, फिर सॉफ्ट डैक राइबा ली, और अभी तक जो है पेशेंट, और समटाइम्स दे क्लेम कि ये नेगेटिव हो गया था और अब दोबारा से वापस आ गया, इस तरह का, यानी कि रिलैप्सर भी होते हैं, नॉन रिस्पॉन्डर्स भी होते हैं। ये सिनेरियो जो है ये काफी हम देखते हैं। अच्छा, इसमें जैसे लाइक यू सेड, दो चीजें हमने जब भी हमने हेपेटाइटिस सी का केस देखना है, तो उसमें दो चीजें स्टार्ट से हमने कैटेगराइज कर लेनी है। एक तो ये डिसाइड कर लेना है कि पेशेंट जो है वो, उसका लिवर नॉर्मल है, सिरोटिक तो नहीं है, कंपनसेटेड डिकम्पनसेटेड, इसका फैसला करने के बाद फिर हमने ट्रीटमेंट, तो लाइक यू सेड कि पेशेंट के प्लेटलेट्स काफी अच्छे हैं, स्प्लीन लार्ज नहीं है, as we take the ultrasound reports, slightly irregular margins हैं, we can make it sure by doing a fibroscan और एप्री या फिर 4 कैलकुलेट करें, तो वो इस केस का जो है वो काफी लो बनता है, सो दैट पुट्स हर कि इसका लिवर नॉर्मल है अभी तक। ठीक है, तो ये एक चीज पहले हमने डिटरमिन कर ली। उसके बाद अब ये अगला जो सवाल है वो ये है कि हेपेटाइटिस सी के लिए क्या करें। एक्चुअली जो गाइडलाइंस हैं हमारी, वो तो देखे ना, हम तो अब सॉफ्ट डैक पे अभी तक खड़े हैं, जबकि गाइडलाइंस तो कहती है ना कि सॉफ्ट वेल दें, बल्कि इवन फॉर जीनोटाइप 3 अब जो कि हम कंसिडर करते हैं कि हमारे लोगों में कॉमन होगा, इस पेशेंट का आइडली स्पीकिंग अब जीनोटाइप होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, और गाइडलाइंस ये मेंशन करती हैं कि अब हमारे, मतलब इस तरह के सिनेरियो में यू शुड हैव द म्यूटेशन प्रोफाइल, जो कि हमारे पास होता नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और उसके बाद फिर आप जो है डिसाइड करें कि पेशेंट को ट्रीटमेंट क्या देनी है। अगर हम सॉफ्ट डैक दे चुके हैं, तो सॉफ्ट वेल के साथ सॉफ्ट वेल और राइबा वेरिएंट, क्योंकि जीनोटाइप 3 में म्यूटेशन के चांसेस हाई हैं, नहीं चेक होती, तो फिर आप राइबा जरूर ऐड करें। सॉफ्ट वेल और राइबा के साथ 3 मंथ्स का जो कोर्स है वो रिकमेंडेड है। लेकिन अगर इस पेशेंट का जीनोटाइप चेक हो जाता है और इसकी म्यूटेशन समहाउ आइडियल सिनेरियो में बिल्कुल चेक हो जाती है, तो देन जो गाइडलाइंस हमें सजेस्ट करती हैं वो करती हैं सॉफ्ट वेल वॉक्सी और राइबा फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, तो सॉफ्ट वेल वॉक्सी पाकिस्तान में मुश्किल से मिलती है, मिल जाती है वैसे, अवेलेबल समटाइम्स इन लाहौर जो है वो अवेलेबल होती है, वसोवी के नाम से आती है,
और दैट इज एन ऑप्शन। लेकिन हमें चूंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट कैन नॉट अफोर्ड इट एंड कैन नॉट ब्रिंग इट, तो फिर हम सॉफ वेल और रायबाग के ऊपर ही ट्रीट करते हैं पेशेंट्स को। जी डॉक्टर सर। जी थैंक यू, थैंक यू, आई एग्री विद यू। जो वो सेवी है जिसमें जी सपोस्पोविर, वेल्बेटास्पिर और वॉक्सीलेप्रिविर है, ये फेरोसन्स जिलियड के कोलैबोरेशन से जो कंपैशनेट यूज के ऊपर पाकिस्तान में अवेलेबल है। अभी मेरे एक पेशेंट ने मंगवाई थी, आई थिंक 1 लाख 180 की शायद, एक, क्योंकि डॉलर के जी साथ बहुत ज्यादा चल रही है, फॉर अ मंथ जी ट्रीटमेंट। जी तो उसको हमने वो की, लेकिन यहाँ पे अभी जो हम एक ट्रायल कर रहे हैं जो ग्राहम फॉस्टर का ग्रुप के साथ है, उसमें इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की जा रही है। उसमें उजैर, इफ यू कैन स्टॉप शेयर हेयर, तो you can- उस ट्रायल में बेसिकली ये है कि हम लोगों को ट्रीट कर रहे हैं फॉर विद आवर रूटीन मेडिसिन विच इज सॉफ्ट डैक और सॉफ्ट डैक राइबा, डिपेंडिंग अपॉन जो भी हमारी करंट है लोकल गाइडलाइंस हैं। और जो इनके नॉन रिस्पॉन्डर्स हैं उनको हम रैंडमाइज कर रहे हैं विद सॉफ्ट वेल फॉर 12 वीक्स और सॉफ्ट वेल फॉर 24 वीक्स। इंटरेस्टिंगली इसमें रिबाविरिन नहीं है, और ये वो सारे चीज हैं जिसमें जो है इन सारों की जो है ना सैंपल्स, दे आर स्टोर्ड हेयर एट -80 एंड दे आर ट्रांसफर्ड टू, अभी 2 लॉट्स हम ट्रांसफर कर चुके हैं यूके फॉर रेजिस्टेंट म्यूटेशंस। तो जब ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, आई थिंक इस वक्त ये दूसरा साल चल रहा है, इट्स अ 5 ईयर प्रोजेक्ट, जो दूसरा साल अब ये जब पूरा कंप्लीट होगा, इन आई थिंक इन 3.5 ईयर्स लगेंगे इसकी सारी प्रैक्टिकल साइड को खत्म होते हुए, और उसके बाद इसकी जो सारी डेटा इंटरप्रिटेशन और सारा कुछ है, तो देन इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। सारा पाकिस्तान में है, और जो हमें इंस्ट्रक्शंस थी वो यही थी, आपने उसी तरह ट्रीट करने हैं जिस तरह आप क्लिनिक्स में, और मोस्टली हेपेटाइटिस के जो क्लिनिक्स हैं, जो फिल्टर क्लिनिक्स हैं, जिस तरह हेपेटाइटिस कंट्रोल, जिसमें लोकली आप इनको ट्रीट करते हैं। डॉक्टर औज, आर यू विद अस? आप सुन रही हैं? जी सर। डॉक्टर औज जो है वो शीज, डॉक्टर औज आप बता सकती हैं हमारे पास सॉफ्ट डेक के ट्रीटमेंट में अब तक कितने हैं जो ट्रीटमेंट फेलियर्स हैं? जस्ट एक नंबर आप बता सकें। सर अभी तक हमारे पास 3 पेशेंट्स हैं, 3 जी, टोटल 3 3 का तो पेशेंट्स आपने हैं। ट्रीटमेंट शुरू किया है ना? ट्रीटमेंट का तो जी। आपने, नहीं टोटल का कोई नंबर याद है? नहीं सर, यही है, 3 ट्रीटमेंट फेलियर है और एक री इन्फेक्शन आया था जिसका हमने सेकंड SVR किया था, और उस पे उसका PCR दोबारा डिटेक्टेड आया था। ठीक है, चलें, थैंक यू। तो इसका मतलब है अभी तक हमारा एसवीआर रेट तो खैर 95-96% पे चल रहा है, क्योंकि हमारे पास टोटल एसवीआर कितने आ चुके हैं हमारे पास अभी तक, जो हम सर अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 100 तक SVR आ चुके हैं। जी 100 प्लस हैं, जिनमें से 3 ये PCR नेगेटिव आए थे, SVR नेगेटिव थे, उनका हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था सेकंड लाइन। जी। तो आप अंदाजा कर सकते हैं मेरे ख्याल में कि हम सॉफ्ट डेक कितना अच्छा काम करती है एज फार एज जी एसवीआर जी 12 इज बिल्कुल कंसर्न्ड। ऐसे ही है एक्चुअली। ये सॉफ्ट डेक के साथ नॉन रिस्पॉन्डर या जो रिलैप्सर हैं ये बहुत कॉमन नहीं है। मतलब डू सी, लेकिन 90-95% जो भी स्टडीज सारी ओवरऑल रिपोर्ट करती हैं वो यही करती हैं कि एसवीआर काफी अच्छा है डेक्ला के साथ। फिर कंसिडरिंग ओवर सिचुएशन कि जिसमें पेशेंट्स जो है वो फिर इसलिए ट्रीटमेंट नहीं लेते कि ट्रीटमेंट महंगा है, जैसे मतलब वेल्पा भी उनके लिए इट इज एक्सपेंसिव फॉर देम। तो चूंकि हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम से मिल जाती है डेक्ला, तो वो दे देना ही ज्यादा, मतलब पेशेंट में से ये सवाल करते हैं ना कि आप डेक्ला ही फिर क्यों, आप वेल्पा ही क्यों नहीं प्रिस्क्राइब करते, मतलब कुछ जो थोड़े से पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो उनको फिर वो हम कहते हैं कि आप अगर ले सकते हैं तो आप जरूर लें, लेकिन अदरवाइज डेक्ला जो है दैट आल्सो वर्क्स वेरी गुड। जी। और ये जो आपने बात की कि 6 मंथ्स, यस, ये भी रिकमेंडेड है। वैसे तो वो कंपनसेटेड सेरोटिक्स या सेरोटिक्स में कहते हैं कि भी आप यू एक्सटेंड द ट्रीटमेंट,
लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग गाइडलाइंस तो कहती हैं 3 months, लेकिन जब इस तरह का पेशेंट आ जाए तो वी डू ट्रीट देम फॉर 6 months. डोंट टेक चांसेस. और रिबाविरिन असद जो जैसे AASLD की जो अब अपकमिंग गाइडलाइंस है, उनका कोई जो उन्होंने टेम्पलेट एक निकाला है, अभी पब्लिश होने वाली है, उसमें भी जो शिफ्ट है दैट इज के जीनोटाइप 3 के लिए राइबाविरिन विल बिकम अ नेसेसरी इवल मोस्ट लाइकली. तो हाँ, मतलब वो दे से मतलब वो सेपरेट करके लिख रहे हैं कि जेनोटाइप 3 में चेक करें म्यूटेशन के लिए, और अगर म्यूटेशन है तो रेबाविरिन दें. और अगर हमारे कंसीडरिंग हमारा सिनेरियो के भी म्यूटेशन तो चेक नहीं हो सकती, तो फिर हमें तो हर पेशेंट में रेबाविरिन देनी चाहिए उनके मुताबिक. जी, यू आर राइट. हमारा पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा डिबेट थी जब ये स्टडी डिजाइन हो रही थी कि हम बहुत ज्यादा इसमें थे कि रिबाविरिन होनी चाहिए, बट समहाउ इन्होंने दे डिसाइडेड, जो भी पैनल ऑफ कंसल्टेंट्स हैं, कि मैं तो खैर मेरी तो बड़ी फेवरेट है, लेकिन फॉर द स्टडी पर्पसेस इन इन दीज ट्रीटमेंट फेलियर्स, जिस तरह ये 3-4 पेशेंट हैं, इनमें रिबाविरिन नहीं है. 12 वर्सेस 24 वीक्स ऑफ सॉफ्ट वेल है. ग्रैम फॉस्टर का बहुत ज्यादा ख्याल है कि ये काम करेगी. तो लेट्स सी, अभी ये रिजल्ट्स आएंगे, फिर म्यूटेशंस भी पता चलेंगी और इसको देखेंगे. एंड एनीथिंग टू ऐड हियर, डॉक्टर फैजान, आप कुछ कहना चाहो? आप हमारे साथ हो. जी सर, नहीं जी सर, वी कैन हेयर यू. आपका कमेंट है या कोई? जी जी सर, नहीं बड़ा अच्छा मैडम ने एक्सप्लेन किया है अबाउट सोफिगेट और डेक्ला. सर हम स्पेशली जो पेशेंट्स, आई थिंक हमारे पास जो सिरोटिक पेशेंट्स आते हैं उनमें जितना हम लिवर क्लिनिक में देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है, जो फर्स्ट टाइम पेशेंट प्रेजेंट करते हैं विद लिवर सिरोसिस, उसमें जो सोफिगेट और डेक्ला का जो रिस्पांस है, खैर मेरे पास उसका डाटा तो नहीं है, बट हमने उसमें देखा है कि एसवीआर उसमें अचीव नहीं होता. या तो पेशेंट नॉन रिस्पॉन्डर रहता है, या पेशेंट जो है वो रिलैप्स कर जाता है फौरन. तो उसमें इवन सर हमने जो पेशेंट सोफिगेट, डेक्ला और रिबाविरिन के साथ भी हैं, तो आई थिंक जो पेशेंट्स जो ये बात कर रहे हैं कि सोफिगेट जो वेल्पा को हम प्रेफर कर रहे हैं, आई थिंक दैट शुड बी फॉर सिरोटिक पेशेंट्स. और मेरी तो प्रेफरेंस ये होती है कि हम जितने पेशेंट हमारे पास लिवर सिरोसिस के साथ आते हैं, उसमें हम व्हाई डोंट वी स्विच टू सोफिगेट एंड वेल्पा टेस्ट. उसमें सर कोई स्टडीज अगर हैं तो सर. जी, आप मेरे ख्याल में आप म्यूट हो गए हैं. फैजान, आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है. स्टडी तो अब हम मिलके बना लेते हैं ना. आप अगर आपके पास डेटा है सॉफ्ट डेक का, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये हुई थी कि हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम ने रिबाविरिन देनी बंद कर दी है कुछ अरसे से. हमारे पास जो ट्रस्ट में पेशेंट है, हमने रिबाविरिन बाय की है एंड वी आर स्टिल गिविंग रिबाविरिन. अगर हम कहीं से ये डेटा पूल कर लेते हैं, हमारे पास जितना भी सिरोटिक पेशेंट है, जिसका मतलब एप्री मोर देन 1.5 है, इनवेरिएबली दे विल बी ऑन रिबाविरिन. ठीक है, और वो 24 वीक्स का ट्रीटमेंट है. आपके पास अगर सॉफ्ट डेक का डेटा है, लेट्स से 24 वीक्स का, इन एप्री, जो कि इनकी हेपेटाइटिस कंट्रोल वालों की जो एक लाइन है, तो अगर आप वो इकट्ठे कर लें, लेट से 50-100 हम दोनों तरफ इकट्ठे कर लें, तो मेरे ख्याल में हम एक अपना कंपैरिजन बहुत अच्छा निकाल के इसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं और पब्लिश भी कर सकते हैं. तो लेट्स डू इट. आई थिंक थोड़ा सा किसी को बिठाएं, आप भी इकट्ठा करें, हम भी अपना इकट्ठा करते हैं. वी कैन देन सिट टुगेदर एंड ब्रिंग आउट अ गुड पेपर. जी सर, और डेटा हम टेस्ट और वेल्पा का मैं सिर्फ ये ऐड कर दूं, जो इशू है ना, वो बिकॉज इट इज एक्सपेंसिव, अब और एक्सपेंसिव हो गई है जब से ये डॉलर का मसला है. बल्कि जो अब इसका जो कोट आ रहा है सॉफ्ट डेक, जो कि हमें 1800 रुपीज अ मंथ पे मिल रही थी, वो अब 4000 या 4600 अ मंथ पे चली गई है. ये अभी आज मुझे कम्युनिकेट किया है इन्होंने. तो और वेल्पर टेस्ट भी तो अब 10,000 से नीचे कम ही मिलती है. 8.5-9 बहुत लकी हो तो आपको मिलती है. तो जो हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम है, उसमें वेल्पा नहीं है. और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बहुत बड़ी डिबेट चल रही है
कुछ बिकॉज ऑफ आई डोंट नो फाइनेंशियल इंटरेस्ट, या मे बी वो आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर के वेल्पा इज अ सुपर ड्रग, तो वो बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं कि वेल्पा को हेपेटाइटिस कंट्रोल में एंटर कराएं। लेकिन हम थोड़ा सा टफ टाइम भी दे रहे हैं कि ये बहुत महंगी पड़ती है। जिस तरह हमने रिजल्ट्स आपको शो किए हैं, तो इट वर्क। अगर 3% भी फेलियर है तो इट स्टिल वर्क्स वंडरफुली वेल। और जो 100 मरीज डॉक्टर औज बता रही है उसमें एप्री मोर देन 1.5 भी काफी होंगे। जी प्लीज। जी, एक्चुअली बात ये है कि आई थिंक इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए ना। ऑप्शंस शुड बी अवेलेबल कि अब जैसे फिजान ने कहा, हम देखते हैं एक पेशेंट एप्री मोर के साथ आ जाता है या कोई उसकी कोई हिस्ट्री है, उसमें फिर हम चूज कर सकें हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम में ऐसी ऑप्शन हो। लेकिन या फिर डेफिनेटली अगर वेल्पा आ जाएगी तो लोग फिर क्या करेंगे कि सारे उसी उसी को देना शुरू कर देंगे, मुफ्ती मिलनी है। तो वो लेकिन ये है कि मेरा ये ख्याल है कि इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। डेक्ला काफी अच्छा काम करती है और सेल्डम यू सी अ पेशेंट। अगर हम इसका डाटा पूल करेंगे, जो कि करना चाहिए डेफिनेटली, फिजान इस पे हम बना लेते हैं एक प्रोटोकॉल और अपना डाटा इकट्ठा करते हैं हेपेटाइटिस में। मैंने वैसे उस्मान को भी कहा था, लेकिन अब हम दोबारा इस पे ये सिंपोजियम हमारा हो जाए फिर शुरू करते हैं काम। तो ये जो है वो होना चाहिए। लेकिन प्रोबेबली डेक्ला जो है ना वो अच्छी है और कम कीमत पे मिल रही है, तो उसको चलना चाहिए। वेल्पा जो है दैट शुड बी ऑप्शनल एंड इट शुड बी अवेलेबल फॉर, यानी में भी कोई फॉर्म वगैरह हो जाए जिसको फिल करके दें तो तब वो मिले, और इस तरह से कुछ इस तरह का हो। जी जी सर। ठीक है। Any other question? Otherwise, we are almost done. I think it's been a wonderful discussion. Any other question? सर एक क्वेश्चन मैंने अबाउट लीराग्लूटाइड पूछना था एंड नेफल्ट। जी जी बताएं आप। सर मेरा मैडम से भी आपसे भी क्वेश्चन है कि हम जो ओबीस पेशेंट्स में लीराग्लूटाइड यूज कर रहे हैं, अगर उसमें को एग्जिस्ट करता है नेफल्ट, इफ यू जस्ट एज्यूम, सर कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो ओबीस नहीं है, तो क्या उसमें हम लीराग्लूटाइड को जस्ट फॉर नेफल्ट और नैश दे सकते हैं? क्योंकि अब स्टडीज आ रही हैं कि वो बैलूनिंग और हेपेटिक इन्फ्लेमेशन को कम करती है। फिजान, अभी तो एफडीए अप्रूवल इसका ओबेसिटी के लिए है और फैटी लिवर डिजीज में सच नहीं अप्रूवल, और ना ही अभी कोई ड्रग इस तरह की इन्होंने, मतलब अपार्ट फ्रॉम विटामिन ई और जो वो है आपका पायरिलिटोजोन है, इसके अलावा कोई और एफडीए अप्रूव्ड नहीं है फॉर फैटी लिवर डिजीज। तो आप उसको कुछ स्टडीज की बेस पे जो पेशेंट ओबीस ना हो उसको रिकमेंड नहीं प्रॉब्ली कर सकते। मे बी इन फ्यूचर वी विल हैव सम मोर इंफॉर्मेशन, तो उसकी बेस पे हम सोच सकते हैं इसके बारे में। जो पेशेंट्स ओबीस नहीं है और उनको फैटी लिवर है, दे बिकम वेरी ट्रिकी, क्योंकि उसमें आपको फिर जो है ना वो आप ये भी नहीं, वो खैर जो मोटे हैं वो भी कौन सा मतलब वेट लॉस अपना करते हैं या इस तरह से, लेकिन ये है कि जो ओबीस नहीं है उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। खाली एएलटी वगैरह तो रिस्पॉन्ड करता है विटामिन ई को, जो मेरे एक्सपीरियंस में है कि भी विटामिन ई से एएलटी बेहतर हो जाता है। कुछ केसेस में नहीं होता। लिपिड प्रोफाइल वगैरह चेक कर लें, वो सारी चीजें। ये एक जो मिथ है कि स्टैटिन्स ना दें, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो आप दे सकते हैं बड़े आराम से अगर लिपिड प्रोफाइल रेंज है, वो नॉर्मलाइज होता है तो इट डज हैव सम इफेक्ट। तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप उनको दे सकते हैं। क्या ख्याल है सर? जी देखो इसमें जो डॉक्टर सहर ने कहा है, शी इज राइट और आई एग्री विद हर। इशू ये है कि फॉर फॉर अ नैश, और जिस तरह आप कह रहे हो बैलूनिंग भी है और सारा कुछ है, फॉर नैश यू हैव टू गो फॉर वेट रिडक्शन। सब यही कहते हैं वेट रिडक्शन वेट रिडक्शन। अब जब अब ये लोग क्लेम ये करते हैं कि ये 20 up to 25% weight loss, this is a massive weight loss। अगर 100 किलो का बंदा है तो that means के 75 के करीब तो वो आ ही जाएगा। तो that's what they claim, ठीक है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि जो वेट रिडक्शन होगी तो एलएफटी इंप्रूव होंगे और आपका पूरा वो जो मेटाबॉलिक प्रोफाइल है वो सारा बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो जो आपका जो सवाल है वो लीन नैश का है।
कि अगर किसी को लीन नैश है, वेट BMI भी उसका बहुत ज्यादा नहीं है, और जो कि साउथ एशियन में देखा जा रहा है, मेरे ख्याल में इसको इसके ऊपर कैटेगोरिकल जवाब देखा जाए तो ऑफ लेबल मे बी, ऑलरेडी हम ऑफ लेवल ही यूज कर रहे हैं बाय द वे, जब हम इसके ऊपर, क्योंकि अभी अभी भी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अभी एक और दवाई जो है, शायद आपने सुना हो, ट्राइजेपिटाइड है, दैट्स अ टैबलेट फॉर्म में है गालबन, वो भी अब गालबन अप्रूव हो गई है वेट लॉस के लिए, जिसके रिजल्ट्स कहते हैं काफी प्रॉमिसिंग, बट पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो बट दीज आर द थिंग्स। और बात ये है कि ये करना इसलिए पड़ता है क्योंकि हम, सिंपल पेशेंट आता है, विटामिन ई लिख देते हैं और कहते हैं जी आप डाइट न्यूट्रिशनिस्ट से मिलें, और डाइट है और एक्सरसाइज है। ना वो डाइट कंट्रोल होती है, ना उससे एक्सरसाइज होती है, तो बात तो फिर वहीं पे आ जाती है। तो देन यू आर लेफ्ट विद दिस, और फिर वही आपको, आप देख रहे होंगे, मैं आई एम श्योर आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में द नंबर ऑफ पीपल हु आर प्रेजेंटिंग विद हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा विदाउट हेपेटाइटिस बी एंड सी, तो ये सारे के सारे नैश है, बर्न आउट नैश है, जो आते हैं और जो उस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। बट मेरे ख्याल में भी यू स्टे ट्यून, क्योंकि इसके ऊपर डिस्कशन होती रहेंगी, और ये अभी इट विल बी अ गुड पॉइंट, इसको हम आगे भी टेक अप करेंगे। जी, एनीथिंग एल्स? नहीं, थैंक यू सर। ठीक है, किरण आप देख लो, नथिंग एल्स। सहर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, और दिस इज नॉट द लास्ट टाइम, आई थिंक यू विल बी अ रेगुलर नहीं, फैकल्टी मेंबर। हाँ, इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब, कोई क्वेश्चन चैट में तो नजर नहीं आ रहा, सो आई थिंक हम इसको वाइंड अप ही करते हैं। जी जी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सहर फॉर जॉइनिंग अस। और इसके अलावा ये है कि फॉर द अदर्स जो हम ज्वाइन कर रहे हैं, इफ यू हैव अदर केसेस जो आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हमारे फॉर्मेट अवेलेबल है, यू कैन आस्क फॉर इट। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई केस हम प्रेजेंट करें, तो वी दैट इज ऑल्सो मोस्ट वेलकम, हम वो भी आपके लिए प्रेजेंट कर सकते हैं। करंटली हमारे 3 प्रोग्राम रन हो रहे हैं हेपेटाइटिस एको का। कल से हमारा लिवर पैलिएटिव केयर एको भी स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा IBD एको सेशन भी होता है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और रजिस्टर करना चाहते हैं, तो आप उज़ैर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल जो प्रीवियस प्रोग्राम्स हैं वो अपलोडेड हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका लिंक उज़ैर शेयर कर चुके हैं। इसके अलावा वी आर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेपेटोलॉजी, Ferosens Laboratory Limited for unrestricted educational grant, and our team at PARSA Trust and PARSA ECHO Pakistan. Allah Hafiz. Uzair, you can please call off the meeting. Sure, ma'am. Allah Hafiz. Allah Hafiz.